तो स्टूडेंट्स चलो आज कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस. The same amount of electricity was passed through the two separate electrolytic cells containing solutions of nickel nitrate, that is NiNO3 twice, and the chromium nitrate CrNO3 thrice. If 0.3 gram of nickel is deposited in the first cell, then what amount of chromium is deposited? So its mass is asked. So first of all, simple, Ni2++ 2 electron gives Ni. This numerical can be done by two methods. Here we will consider both of the methods. चलो first method देख लो. By passing 2 Faraday we are getting 1 mole. निकल का एटॉमिक मास हमें लेना है यहाँ पे 59 grams. So here we are getting 0.3 gram. Then how much Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी पास्ट, क्योंकि आपको ये मास दे दिया है तो फिर आपको पास्ट इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगी. ओके, सो 0.3 into 2 by 59. So this much electricity, this much Faraday electricity is passed, and here we will write by passing 3 Faraday we are getting 52 gram because 52 is atomic mass of chromium. So 0.3 into 2 by 59, then how much mass would be obtained? So 0.3 into 2 by 59, ऊपर 52 आएगा, नीचे 3 आएगा, तो ये होगा 0.1. ओके, एंड by using calci, here we can calculate 0.2 multiplied by 52 divided by 59. We are getting 0.1763. So B Bombay is the correct answer. Simple. Second method देखते हैं. चलो यहाँ पे solution है निकल, उसका मास आपको दिया है 0.3 ग्राम. क्रोमियम, उसका मास आपको पूछा है, तो मास ऑफ क्रोमियम उसका फॉर्मूला क्या होगा? AIT by N into 96500. ओके, अपॉन मास ऑफ निकल, तो उसका भी फॉर्मूला सेम, AIT अपॉन N into 96500. अब देखो दोनों को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, आपको यहाँ पे दे दिया है ना, through the two separate electrolytes containing and both are connected in a series and same amount of electricity is passed, means IT upon 96500 is cancelled itself because we have taken ratio. So mass of Cr, we want to calculate mass of nickel, it is 0.3. अब यहाँ पे atomic mass कितना? 52 by 3. ओके, और यहाँ पे आएगा 59 by 2. तो देख लो स्टूडेंट्स, यही टर्म्स आई, 0.3 0.3, 2 into 52, 2 into 52, divided by 59, divided by 3, divided by 59, divided by 3. Answer will be same. So here same numerical is done by total two methods. First of all, simple cross multiplication method, and second the shortcut formula. Easy. Next, a current of 20 ampere is passed for 482 seconds through the 50 ml 0.1 molar NaCl. So what is the concentration of hydroxide ion? That is asked. अब देखो आपको याद होगा कि यहाँ पे concentrated solution है. So एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons, और कैथोड पे रिएक्शन होनी चाहिए सोडियम आयन की, बट यहाँ पे वाटर का रिडक्शन होगा. रिएक्शन आपको याद होगी, 2H2O plus 2 electrons gives H2 gas plus 2 OH minus. Okay, now first of all we will calculate Q, that is I into T upon 96500. पता है ना, past amount of electricity. So I, what is I? 0.2 time 482 seconds divided by 96500. So here we will get the number of Faraday of electricity which is passed through the 50 ml 0.1 molar NaCl, and it is
0.2 multiplied by 482 divided by 96500. So 9.98, 9.99, that is almost 10 into 10 raised to minus 4. So it is overall, it is 10 raised to minus 3. We can write 0.001. Okay. Now you are asked the concentration of hydroxide ion into the solution. अब देखो, by passing 2 Faraday, 2 electrons means 2 Faraday, we are getting 2 moles of OH minus. Means by passing 1 Faraday, we are getting 1 mole of OH minus. That means by passing 10 raised to minus 3 Faraday, we are getting 10 raised to minus 3 mole of OH minus. Okay, आपको पूछिए फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. ओके, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 10 raised to minus 3, और वॉल्यूम कितना है 50 ml, मीन्स 50 into 10 raised to minus 3. समझ में आ गया होगा क्यों, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर, that is molarity. 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 cut. So our answer is 1 by 50. 1 by 50 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 divided by 100 means 0.02 molar. This is the concentration of OH minus. Done. Next, 4.5 gram of aluminium having atomic mass 27 is deposited at cathode from Al3 plus solution by the certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen gas produced with the same amount of electricity. तो रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, Al3 प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, मास ऑफ Al इक्वल्स AIT अपॉन 96500. ओके, तो आपको वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम एट STP, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मूला क्या होगा, IT अपॉन 2 इंटू 96500. तो चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पहले कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, यहाँ पे मास ऑफ एल्यूमिनियम यही फॉर्मूला. अब यहाँ पे आएगा 1/2, क्यों, दोनों में IT by 96500 कट हो जाएगा. चलो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दे दिया है बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब IT by 96500 कट, तो यहाँ पे बचा 1/2 N ऑफ H2 के लिए, और यहाँ पे बचा A by N. चलो 1/2, व्हाट इज A एटॉमिक मास, एंड इट इज 27, और डिवाइडेड बाय N. N इज अ वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पता है. चलो मास ऑफ Al कितना दिया है आपको, 4.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 3 9s एंड 1/18, एंड मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.5. 4.5 मीन्स 45/10. चलो 9 2s 9 5s, 5 2s 1/4. 1/4 मोल्स ना, 1/4 मोल्स आपको मिलेंगे ना. तो आपको वॉल्यूम एट STP फाइंड आउट करना है, तो 1 मोल मीन्स 2.4 लीटर. 1/4 मोल मीन्स डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1/4, that is divided by 4. So it is 4 5s and then 4 6, 5.6 liter. D is the answer. Okay, next is a current of 9.65 ampere current. I is 9.65 ampere. T time is 3 hours. Between nickel electrodes in 0.5 liter 2 molar concentration. Okay. Solution is of NiNO3 twice. There is a printing mistake. The molarity of the solution after electrolysis. Students, here answer is D Delhi. That is E. E is the answer. There is no answer in the options. Our answer is 2 molar as it is, because here we are taking the solution of NiNO3 twice
and here we are using the nickel electrodes. Okay, दोनों निकल इलेक्ट्रोड्स ही है and solution is of NiSO4. ओके तो होगा क्या, ध्यान से देखो, यहां पे सॉल्यूशन किसका है, NiSO4 का है और निकल इलेक्ट्रोड्स ही है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी पता है, Ni सॉलिड, वन साइडेड एरो, gives Ni2 plus 2 electrons. On cathode reaction takes place, Ni2 plus 2 electron gives Ni. Okay, and total reaction will be Ni solid gives Ni solid. याद होगा ये जनरली हम इम्प्योर लेते हैं और ये प्योर लेते हैं, ये एनोड है ये कैथोड है, और आपको पता होगा कि जितने Ni2 प्लस सोल्यूशन में जाएंगे उतने ही Ni2 प्लस सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, तो मतलब NiSO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कंसंट्रेशन इज सेम एज इनिशियल, दैट इज 2 मोलर. ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल. नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 centimeters square. So this is the area and thickness. It is 0.005 mm. This much thickness of layer of silver हमें चाहिए, सिल्वर लेयर हमें चाहिए. उसके लिए 3 ampere current is passed for how much time? That means if we apply the formula, mass of Ag equals AIT upon N into 96500. चलो इनवर्ट न्यूमेरिकल करते हैं इससे. AgNO3 सोल्यूशन मीन्स Ag का चार्ज 1, Ag का एटॉमिक मास 108, एम्पियर 3, टाइम वी वांट, मतलब आपको जो गिवन डेटा दिया है उसके हिसाब से आपको क्या, उसमें से आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सिल्वर निकालना है. तो यहाँ पे देखो एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज द वॉल्यूम. ओके, एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो mm को सेंटीमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करें, 1 mm इक्वल्स 0.1 सेंटीमीटर, पता होगा ये तो. 1 mm इक्वल्स 0.1 बिकॉज 1 m मतलब मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर, इक्वल्स 0.1 मतलब 10⁻⁴ और 10⁻² मीटर. समझ में आ गया होगा, देख लो. ओके, तो चलो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे हम लेंगे 0.005 इंटू 10⁻³ मीटर. अब 10⁻³ के दो पार्ट, 10⁻⁻1 10⁻², तो 10⁻⁻1 लिख दूँ तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, समझ में आ गया होगा. और ये 10⁻1 मल्टीप्लाई कर दो तो 80 इंटू 0.005 0005 होगा. ओके, 5 8 40, तो मतलब 400 लिख दो पहले, 80 इंटू 5 और 5 इंटू 10⁻⁴, तो 0.04 होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब. अब ये आया वॉल्यूम. ओके, सोल्यूशन इज ऑफ AgNO3, तो वॉल्यूम आया. डेंसिटी इज गिवन टू यू. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मास अपॉन वॉल्यूम. सो दैट मास इक्वल्स दैट वी वांट हियर, डेंसिटी 10.5 इंटू 0.04, तो यहाँ पे लिख दो 10.5 इंटू 0.04. ओके, 1 2 3 4, जस्ट मिनट ये कैलकुलेशन एक बार कर दूँ. 5 8 40 एंड 10 मतलब 400, और हमने टोटल कितने 4 डिजिट्स कट किए, तो 1 2 3 एंड 4, यस डन, 0.04 डन. हाँ, अब यहाँ पे 96500 है ही. अब टी को सब्जेक्ट बनाओ, 10.5 इंटू 0.04 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 3. Here is our
10.5 multiplied by 0.04 multiplied by 96500 divided by 108 divided by 3, 125.1 this much second. Okay, next, how many grams of chlorine gas is obtained by passing 2 Farad of current? ओके 2 एम्पियर दिया है ना. ओके यहाँ पे टाइम दिया ही नहीं है, तो फिर ऐसा करो इन्वर्ट न्यूमेरिकल, या तो फिर ऐसा करो यहाँ पे आंसर कंसिडर कर दो सी और पूरा इन्वर्ट करके टाइम यहाँ पे लिख देते हैं फिर हम. ओके तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, उसका फॉर्मूला है I इंटू टी अपॉन 2 इंटू 96500. तो टाइम पहले कैलकुलेट कर दो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, तो उसके लिए आपको मास दिया है 1.32 डिवाइडेड बाय 71, देन 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर. ओके 2 कट, तो टाइम कैन बी कैलकुलेटेड and it will be 1.32 multiplied by 96500 divided by 71, 1794 divided by 3600. So 0.5 hours means half an hour हम लिख सकते हैं, या तो फिर 30 minutes. तो हमें ये आंसर फिर मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फॉर 30 minutes. ओके डन. चलो स्टूडेंट्स, अभी हमने 18 नंबर का एक क्वेश्चन करवाया ना, उसके जैसा ही है. ओके तो ट्राई योर सेल्फ. नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लो एक बार. यूजिंग 2 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी कैथोड. ओके मतलब यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया. ओके और हमें CD अमलगम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CdCl2, मतलब सोल्यूशन हमने लिया कैडमियम क्लोराइड का. ओके एनोड और कैथोड हमने यहाँ पे डिप किए. तो ये जो कैथोड है ना, इसमें हमने 2 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी यूज किया है एज अ कैथोड. ओके सो हाउ मच एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट मीन्स यू आर आस्क्ड I for 100 seconds T is given to you to obtain mercury cadmium amalgam having 20% of cadmium. मतलब हमें चाहिए 20% कैडमियम. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये है कि 80 ग्राम मर्क्यूरी अगर है तो सामने आपको चाहिए 20 ग्राम ऑफ कैडमियम. लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी कितने ग्राम्स है, 2 ग्राम्स ही है. तो उस टाइम पे कैडमियम अंदर कितना होना चाहिए जिससे आफ्टर ऑल आपको कितना मिले, 20% कैडमियम मिले. अगेन टू गेट 20% ऑफ कैडमियम it must be 80 gram of mercury and 20 gram of cadmium. That's why total is 100 और 100 में से 20 cadmium. अमालगम का मतलब है यहाँ पे कैडमियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर. 20% कैडमियम मतलब 100 में 20 चाहिए, लेकिन 100 तो टोटल ना, तो 20 कैडमियम तो बाकी का क्या होगा, मर्क्यूरी होगा. और यहाँ पे आपने जो कैथोड पे मर्क्यूरी यूज़ किया है, दिस इज इट कंटेन्स ओनली 2 ग्राम्स. तो यहाँ पे जो रिलेशन मिला कि 80 ग्राम मर्क्यूरी तो सामने 20 ग्राम कैडमियम चाहिए, दैट मीन्स वी वांट 20%. तो अगर 2 ग्राम मर्क्यूरी अगर हम लेते हैं तो फिर सामने कैडमियम कितना होना चाहिए, 2 2 4 40/80 दैट इज 1/2 ग्राम कैडमियम हमें चाहिए. तो चलो ख़त्म बात. मास ऑफ CD फॉर्मूला क्या होगा, AIT बाय 2 इंटू, चलो n की जगह पे मैं डायरेक्ट 2 लिख दिया. CdCl2 सोल्यूशन है ना, कैडमियम का चार्ज 2+ होगा. नेक्स्ट, मास ऑफ CD दैट इज 1/2 इंटू 2 इंटू 96500
डिवाइडेड बाय A 112.5 और T 100 सेकेंड्स। चलो 100 2 मिनट गई, चलो 2 गया। यहाँ पे बचा 965 डिवाइडेड बाय 112, 965 divided by 112.5, that is 8.58 D Delhi. Sorry, it is our I, 8.58 ampere. Okay, D Delhi is the correct answer. Next, electrolysis of solution of MnSO4. MnSO4 का electrolysis किया गया in H2SO4 is a method of the preparation of manganese dioxide, manganese Mn4 oxide। और यहाँ पे आपको रिएक्शन दी। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, रिएक्शन में यहाँ पे Mn का चार्ज +2 है, यहाँ पे MnO2 में Mn का चार्ज +4 है। तो +2 to +4 कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वी हैव टू पास 2 Faraday। ओके, देन वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ MnO2। 1 मोल ऑफ MnO2 मतलब कितने ग्राम्स? तो आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास दे देंगे। Mn का 55 और ऑक्सीजन का 16 2 32, टोटल इज 87। ओके, तो 87 ग्राम ऑफ MnO2 is obtained whenever we are passing 2 Faraday of electricity। Okay, and we are passing how much? Then 27 ampere for 24 hours. Just a minute. (27 ampere), okay, and for 24 hours. So we can calculate Q, that is I into T upon 96500. So 27 into 24 into 3600 divided by 96500. So how much Q is there? 27 multiplied by 24 multiplied by 36 divided by 965. 24.174, this much Faraday. 24.174 Faraday. Then how much mass of MnO2 is obtained? So our answer is 24.174 into 87 by 2. 24.174 multiplied by 87 and divided by 2. 1051.57. This much gram of MnO2 must be obtained, but so this is a theoretical value, but practical value is given to you. In actual, how much mass is obtained? So this answer is 1 kg, that is 1000 gram. So the cell efficiency ओवरऑल आपको मिलता है 1051.57 और मिलना चाहिए ये और मिल रहा है ये, तो 100 पे कितना परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 100। ओके, सो इतना आया। फिर से करते हैं 1,000,000 डिवाइडेड बाय 1051.57, आंसर इज 95.1। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, नियर बाय आंसर तो यही है। ओके, अगर हमने यहाँ पे 1051.6 ले लिया होता तो नियर बाय आंसर होता हमारा। ओके, नेक्स्ट 0.5 liter 2 molar aqueous solution of NiNO3 twice is electrolyzed between graphite anode and nickel cathode by passing 9.65, this is our I,
for 3 hours, T equals 3 hours, then what will be the concentration of NiNO3 solution after electrolysis? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ निकल, जब भी आपको फाइनल कंसंट्रेशन पूछते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल आप पहले कैलकुलेट कर दो। फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू टी अपॉन एन इंटू 96500। ओके, I 9.65 T 3 into 3600 divided by valency of Ni is 2 and 96500। चलो 2 0 कट, यहाँ पे 965 कट तो 0.01 बचेगा, 218 आएगा, 18 3 से 54 और 54 में 2 पॉइंट कट, तो ओवरऑल बचा 0.54। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं 0.54 आता है कि नहीं। 9.65 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 96500, नहीं 965, ओके 0.54। सो दिस मच मोल्स ऑफ Ni इज डिपोजिटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ni डिपोजिटेड। डिपोजिट का मतलब क्या हुआ, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, तो मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो था कितना 0.54 मोल्स, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, मतलब सोल्यूशन में अब इतने मोल्स तो सॉलिड में हो गई, तो सोल्यूशन में इतने मोल्स डिक्रीज हुए, डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर, तो ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जिससे आपको डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मिलेगा। ओके, ये मिला आपको 1.08 मोलर। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, इनिशियल कितना था 2 मोलर, देखो दिया है आपको, और डिक्रीज कितना हुआ 1.08 सॉरी, तो डिफरेंस कितना आएगा 0.92 मोलर। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन देखा ना जिसमें निकल इलेक्ट्रोड्स दिया था, पता है ना, यहाँ पे आपको देखो एनोड पे ग्रेफाइट एनोड दिया है, दैट्स वाई नॉर्मल रिएक्शन विल टेक प्लेस, और NiSNO3 ट्वाइस के सोल्यूशन में डिफरेंस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज जितने न्यूमेरिकल्स करवाने थे तो वो न्यूमेरिकल्स तो कंप्लीट हो गए। ओके, तो चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।